morning, grade 6. It's our third unit session. Starts now. In our third unit session, we will learn chapter 1.3, unit 1.3, highest common factor and lowest common multiple. Unit 1.3. Highest common factor and lowest common multiple. Highest common factor and lowest common multiple. ठीक है? Those students who have books open page number 14, unit 1.3, highest common factor and lowest common multiple. It's our class work. Okay, you will start from new page. ठीक है, आप न्यू पेज से ये काम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग हाईलाइट करेंगे यूनिट नंबर 1.3 चैप्टर नेम. ठीक है, देन यू विल कंटिन्यू द वर्क. First of all, we will learn the highest common factor. It's also denoted by HCF. HCF. What is highest common factor? It is the largest factor of two or more numbers that is common to all the numbers. It is denoted by HCF. Start now. It is the largest factor of two or more numbers. This is the definition of HCF, highest common factor. Highest common factor क्या होता है? It is the largest factor of two or more numbers that are common to all the numbers. ठीक है, तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी डेफिनेशन दोबारा रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है बेटा. So finding HCF using prime factorization method.
ठीक है, finding HCF using prime factorization method. Now we are going to solve HCF by using prime factorization method. That is, those students who have books open page number 15, practice now 9. Okay, we are solving the question from page number 15, practice now 9. Page number 15. Who haven't book can see on the screen. The question is sharing to you. Practice now 9. Question 1 is find the highest common factor of 56 and 84 using both methods. Okay. First of all, we are going to solve HCF by using prime factorization method. Okay. Now we are starting to solve the question by using prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं ग्रेड 6? You are given the number 56 and 84. Okay. First, what you have to do, first you will express the number 56 and 84 as a product of their prime factors. In the next step, you will extract the common prime factors, and in the last step, the HCF of your given number will be find out. Okay. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? एक्सप्रेस द नंबर 56 एंड 84 एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है बेटा, व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 56? 2 by 2 is 4, 4 by 2 is 8, 8 by 7 is 56. ठीक है, so that are the product. ठीक है, that are expressed as product of the given prime factor. ठीक है, now the next factors, the next number is 84. The factors of 84 will be 2 by 2 is 4, 4 by 3 is 12, 12 by 7 is 84. Okay. Okay, 12 by 7 is 84.
ओके, इज इट क्लियर? ग्रेड 6 सही है। 56 का फैक्टर्स मालूम करने दें। सो या 56 के फैक्टर्स आ गए, इसी तरह 84 के फैक्टर्स मालूम करने थे, तो ये 84 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं ग्रेड 6, फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले वी विल एक्सप्रेस नंबर 56 एंड 84 एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। देखिए हमने इनके प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किया एज अ प्राइम फैक्टर, ऐसे ही है। ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया इनको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्सट्रैक्ट, वी विल एक्सट्रैक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वी विल एक्सट्रैक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, देखिए इनमें से कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इनमें से कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है बेटा, 256 में भी है, 84 में भी है, अगेन 256 में भी है फैक्टर और 84 में भी है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और ये दो ये और ये हमारे नॉन कॉमन होंगे, और 7 एंड 7 हमारा कॉमन होगा, ठीक है। अब जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ रेड मार्क से, ठीक है। ग्रेड 6 ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कलरिंग मत कीजिएगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84 विल बी 2, 2 एंड 7, ठीक है, ऐसे ही है। देखिए पेयर ऑफ 2 यहाँ भी है, पेयर ऑफ 2 यहाँ भी है, एंड यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। सो ये हमारे कौन से फैक्टर्स हैं, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, ये हमने अपने एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम कॉमन फैक्टर्स को, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ हम लिखेंगे
HCF G6 and 84 by 7। ठीक है, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉमन फैक्टर्स को। ठीक है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है 2, 2 एंड 7, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 by 2 is 4, 4 by 7 is 28। ठीक है, so the HCF of 56 and 84 is 28। Okay, so that's your answer। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया HCF by using prime factorization method। ठीक है, now finding HCF using, ठीक है, अब another method अप्लाई करते हैं हम using division method। इसी तरह से ग्रेड 6 हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी सॉल्व किए थे, किसी को याद है ग्रेड 6? बिल्कुल इन्हीं दोनों मेथड्स को अप्लाई करके हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना सीखा था। किसी को याद नहीं होगा एक दो के अलावा। ठीक है बेटा, ठीक है, another method we will apply to solve the HCF of 56 and 84। ठीक है, and it's very easy method to find out the HCF by using division method। ये मेथड क्या है, बिल्कुल वही मेथड है बेटा जो आपने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे अप्लाई किया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों हमें जो फैक्टर्स गिवन है जिनका HCF मालूम करना है, ठीक है, उनको यहाँ प्लेस कर देंगे। $56 and 84। ठीक है, ये दोनों फैक्टर गिवन है ना, 56 and 84, इनके प्राइम फैक्ट इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक ही प्राइम फैक्टर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक ही प्राइम फैक्टर से। ठीक है, और वो फैक्टर कौन सा होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, like we have solved the square root and cube root to take the smallest prime factor। ठीक है, same we will follow the same rules and same steps to follow to solve the HCF in this revision method।
ठीक है, इसके अंदर भी हम यही करेंगे। हम क्या लेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 लेंगे क्योंकि 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 by 2 is 4, 1 will be carry out to 6, that would be 16, and 2 by 8 is 16. ठीक है, then to cancel 84 we will take 2 by 4 equals to 8 and 2 by 2 is 4. ठीक है, now again we will take 2 to cancel 28. 2 by 1 is 2, 2 by 4 is 8. Then for 42 we'll take 2 by 2 is 4, 2 by 1 is 2. Then now we have 14 and 21 that cannot be cancelled from 2, 3, 5. ठीक है, so we'll take 7 as a prime factor to cancel both factors. ठीक है, 7 by 7 by 2 is 14. 7 by 3 is 21. ठीक है, अब यहाँ देखें लास्ट में आपके पास प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, that cannot be cancelled. सही है, ये कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, जब आपके पास लास्ट में ये एज ए प्राइम फैक्टर आ जाए जो कि एक नंबर से एक फैक्टर से कैंसिल नहीं हो सकते, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब देखें हाईएस्ट HCF टू फाइंड HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों फैक्टर्स को लिख लिया, इसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिया टू कैंसिल बोथ फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। सही है, सिर्फ ये अपने टेबल में आते हैं जब प्राइम फैक्टर आ जाए लास्ट में, तो आप यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए जिन्होंने इन दोनों को कैंसिल किया, 2, 2 एंड 7। ऐसा ही है, तो आप यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ नोट करेंगे। कॉमन फैक्टर आर 2, 2 एंड 7। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है ना ये, इन तीनों फैक्टर्स ने इन दोनों नंबर्स को कैंसिल किया है। सही है, तो 2 and 7 आर इज योर कॉमन फैक्टर। 2 by 2 by 7 is your common factor. So the HCF would be, therefore HCF of 56 and 84 is, अब इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2 by 2 is 4, 4 by 7 is 28। ठीक है, your answer solved by using division method। क्लियर है, ग्रेड 6 क्लियर है? किसी को डिफिकल्टी हो तो फीडबैक सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने क्या सीखा, आज हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स दैट आर कॉमन टू ऑल द नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय HCF। ठीक है, देखिए लार्जेस्ट फैक्टर होता है 2 और मोर नंबर्स का जो कि कॉमन होते हैं सब नंबर में। ठीक है, ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे भी कॉमन नंबर से कॉमन नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास HCF आया। ठीक है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने जब कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया 2 by 2 by 7 that are common number, we have common factors. When we multiplying common factors, so we will have HCF, the highest common factor। ठीक है, so the highest common factor of 56 and 84 is 28। okay, that's your answer। okay, now grade 6,
Now grade 6, open page number 21. Those who have books, open page number 21. See exercise 1B. Exercise 1B. See exercise 1B. Question 1. Find the highest common factor of each of the following sets of numbers. Part A 12 and 30. ठीक है? Now you have to find the highest common factor of 12 and 30. ठीक है, 12 and 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है और ये आपने एज अ होमवर्क करना है. ठीक है, एज अ होमवर्क करना है. ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1B. ठीक है, मैं आपको पार्ट बी सॉल्व करा रही हूँ. ठीक है, पार्ट ए इजी है, ये मैं आपको होमवर्क एज अ होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ. पार्ट बी हम अभी सॉल्व करेंगे. पार्ट बी इज गिवन टू यू. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 84 and 156. ठीक है, so let's start to solve it. 84 and 156 by using division method. Exercise 1B. 84 and 156. बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने अभी यहाँ सॉल्व किया. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कीजिएगा. सबसे पहले ये ड्रॉ कर लें इस तरह से. ठीक है, let's start to solve. ठीक है, first we'll place 84 and 156. 84 156. ठीक है, okay, take the smallest prime factor that can cancel the both factors 84 and 156. ठीक है, टेबल रीड कीजिए. कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लें जो इन दोनों को कैंसिल कर दें. किसी को नहीं मालूम? ओके, we will take 2.
ठीक है, ठीक है। 2/4 is 8, 2/4 is 8, 2/2 is 4, then 2/7 is 15, and 2/7 is 14, 1 will be carried out to 6, that would be 16, 2/8 is 16, then again we will take 2 to cancel both factors such that such that 2/2 is 4, 2/1 is 2, then 2/3 is 6, 1 will be carried out to 8, that would be 18, so 2/9 is 18. Now see both factors 21 and 39, ठीक है, ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते क्योंकि 39 ऑड है, ऑड नंबर है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 3, सही, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3/7 is 21, 3/1 and 3/13 is 39, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या आ गए, क्या क्या रह गया, हमारे पास लास्ट में प्राइम फैक्टर 7 and 13 बोथ आर द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जिसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और अब हम ये जो हमारे 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर CF क्या होगा हमारा, CF इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर, ठीक है, CF इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए 2, 2 and 3, 2/2/3, ठीक है, that are our common factor, ठीक है। Now therefore HCF of 84 and 156 is क्या होगा, 2/2 is 4, 4/3 is 12, ऐसा ही है, 2/2 is 4, 4/3 is 12, ठीक है। Therefore HCF of 84 and 156 would be 12, ठीक है, ये आपका आंसर है 12, ठीक है बेटा। So today we have solved and we have found the HCF by using prime factorization and division method, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 1 पार्ट B 84 and 156 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज C पार्ट 15, 60 and 75, ठीक है।
when you will be given the three factors to find out the highest common factor, ठीक है, जब आपको तीन गिवन हो फैक्टर्स, ठीक है, जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यू आर गिवन इन पार्ट सी 15, 60 एंड 75, स्टार्ट सॉल्विंग नाउ, ठीक है। And 75 is given to you. You can see parts C 15, 60 and 75 and you have to find the SCF, ठीक है। So what you will do, ठीक है। So what will be the smallest prime factor that can cancel the three factors, ठीक है, कौन सा होगा वो, किसी को नहीं मालूम? So we'll take 3 to cancel these factors. 3 by 5, 15, 3 by 20, 60, and 3 by 25 is 75, ठीक है। We'll take 5 to cancel these factors. 5 by 1 is 5, 5 by 4 is 20, and 5 by 5 is 25. अब यहाँ देखें नीचे, नीचे आपके पास क्या आ रहा है 4 and 5, ठीक है।
4 तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन 5 ये एक फैक्टर, एक सेम कॉमन फैक्टर के साथ ये तीनों कैंसिल नहीं हो सकते ग्रेड 6, तो आप यहाँ स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नाउ यू हैव ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, that are 3 and 5. You have only 2 common factors that are 3 and 5, ठीक है। Common factor of 15, 60 and 75 are 3 and 5, ठीक है। Therefore, HCF, highest common factor of 15, 60 and 75 equals to 3/5 क्या होगा ग्रेड 6? 3/5 is 15, ठीक है। So 15 is your answer, ठीक है। 15 is the HCF of these factors. 15 is the HCF of these given factors. That is your answer. Therefore, HCF of 15, 60 and 75 is 15, ठीक है, ठीक है। 15 is the HCF. That's your answer. Now the homework is given to you. Do question 1 part A from exercise 1B, ठीक है। सिर्फ आपने पार्ट ए करना है, ठीक है, ग्रेड 6 एज अ होमवर्क, ठीक है। कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। इज इट क्लियर ग्रेड 6? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।